Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidapar Balganj, and today I am going to start class 7 SST History second chapter, which is Emergence of New Kingdoms. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने चोल वंश के बारे में डिस्कस किया था और कुछ पैराग्राफ ही हुए थे। तो आइए चोल वंश से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Eastern Chalukyas, who eventually accepted his authority, Raja first constructed the beautiful Shiva temple at Tanjore called Raja Rajeswara temple. An account of Raja first exploits its engraved on the wall of temple. His son Rajendra first, by his military valor and administrative talents, raised the Cholas empire to pinnacle of glory. He annexed the whole of Sri Lanka and reasserted the Chola supremacy over Kerala and Pandyan country. His army marched triumphantly up to river Ganga and dominions of the Pala king Mahipala. He adopted the title of Gangaikonda and founded a new capital called Gangaikonda Cholapuram, modern Gangakondapuram in Tiruchirappalli district. The Chola monarch's achievements were not limited to land only. He possessed a powerful naval fleet which gained successes across the Bay of Bengal. It is said that he also sent expeditions to Java and Sumatra, presumably to further commercial relations between the Malaya Peninsula and South India. ईस्टर्न चालुक्य, जिन्होंने अंततः अपने अधिकार को स्वीकार कर लिया, राज प्रथम ने तंजावुर में सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर राजा प्रथम के कारनामों का लेखा जोखा उकेरा गया है। उनके पुत्र राजेंद्र एल ने अपनी सैन्य वीरता और प्रशासनिक प्रतिभा से चोल साम्राज्य को गौरव के शिखर पर पहुंचाया। उसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और केरल और पांडियन देश पर चोल वर्चस्व को फिर से स्थापित किया। उनकी सेना ने विजयी रूप से गंगा नदी और पाल राज महिपाल के प्रभुत्व तक मार्च किया। उन्होंने गंगईकोंडा की उपाधि धारण की और गंगईकोंडा चोलापुरम तिरुचिरापल्ली जिले में आधुनिक गंगाकुंडपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। चोल सम्राट की उपलब्धियां केवल भूमि तक ही सीमित नहीं थी। उसके पास एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था जिसने बंगाल की खाड़ी के पार सफलता हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने जावा और सुमात्रा तक अपने साम्राज्य को फैलाया और उन्होंने अपने आर्थिक रिलेशन भी मालया पेनिनसुला और साउथ इंडिया के साथ बनाकर रखा। अब बात करेंगे किंग एंड मिनिस्टर्स। द किंग वॉज हेड ऑफ द स्टेट. He discharged his duty and responsibility with the help of Council of Ministers and other high officers. The inscription of the Cholas proved that their system of administration was highly organized and efficient. Apart from the rulers, there was a ministerial council and organized administrative staff. The ruler maintained close contact with the Council of Ministers, and royal tours contributed to the efficiency of administration. The officers were paid land assignment. They were honored and encouraged by the conferring titles. The higher officials enjoyed the title of Penandaram and the lower ones Sirutaram. The Cholas also constructed roads which help in trade, commerce and communication. राजा राज्य का मुखिया होता था। उन्होंने मंत्रिपरिषद और अन्य उच्च अधिकारियों की मदद से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। चोलों के अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि उनकी प्रशासन प्रणाली अत्यधिक संगठित और कुशल थी। शासक तिरुवाक्य केल्वी के अलावा एक मंत्री स्तरीय परिषद और एक संगठित प्रशासनिक कर्मचारी था। शासक ने मंत्रिपरिषद के साथ निकट संपर्क बनाए रखा और शाही दौरों ने प्रशासन की दक्षता में योगदान दिया। अधिकारियों को भूमि असाइनमेंट द्वारा भुगतान किया गया था।
उन्हें ई उपाधियों से सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। उच्च अधिकारियों ने ई को पेनुंदरन की उपाधि प्राप्त की और निचले लोगों को सीरुताराम। चोलों ने सड़कों का निर्माण भी किया जो व्यापार, वाणिज्य और संचार में मदद करते हैं। अब बात करेंगे रिवेन्यू की। रिवेन्यू वॉज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम लैंड एंड कलेक्टेड इन काइंड और इन कैश और इन बोथ by village assemblies. Land was possessed by the individuals and communities. The state share of land revenue was fixed at 1/3 of the produce after a elaborate land survey in the time of Raja Raj I. There were periodical revision of the classification of land and of the assessment of land revenue. Other source of public income were custom and tolls, taxes on various kingdom of profession, mines, forest, साल्ट पन एक्सेट्रा। राजस्व मुख्य रूप से भूमि से प्राप्त किया जाता था और ग्राम सभाओं द्वारा वस्तु या नगद या दोनों में एकत्र किया जाता था। भूमि व्यक्तियों और समुदायों के पास थी। राजा एल के समय में एक विस्तृत भूमि सर्वेक्षण के बाद राज्य के भू राजस्व का हिस्सा उपज के 1/3 पर तय किया गया था। भूमि के इस वर्गीकरण और भू राजस्व के आकलन के समय समय पर संशोधन होते थे। सार्वजनिक आय के अन्य स्रोत सीमा शुल्क और टोल थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर कर, खदानें, जंगल, नमक आदि दिए जाते थे। अब बात करेंगे इरिगेशन की। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी वॉज इंश्योर्ड बाय द स्पेशल अटेंशन गिवन टू इरिगेशन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल अथॉरिटीज़. Village assemblies were responsible for the maintaining tanks in good condition and for reclaiming forest and westlands. The Cholas spent huge amount on building. तो सिंचाई की बात करें तो सिंचाई सरकार के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों द्वारा सिंचाई पर विशेष ध्यान देने से कृषि समृद्धि सुनिश्चित हुई। गांव की सभाएं तालाबों को भगवान की स्थिति में बनाए रखने और जंगलों और बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थी। चोलों ने निर्माण पर भारी मात्रा में खर्च भी किए। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। कैनॉल्स, टैंक्स, डैम्स एंड वेल्स. राजेंद्र फर्स्ट डग एन आर्टिफिशियल लेक नियर हिज न्यू कैपिटल गंगाईकोंडा, चोलापुरम. इसके अलावा उन्होंने कैनॉल, टैंक, डैम और वेल पे काफ़ी पैसे खर्च किए। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगाईकोंडा चोलापुरम के पास ही गड्ढे खनवाकर वहाँ पर आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया। अब बात करेंगे आर्मी की। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री. अटेंशन वॉज गिवन टू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ द कैंटोनमेंट. इट वॉज composed chiefly of Kakaicolas, men with strong arms, Sengundar, spear wielders. The commanders enjoyed the rank of Nayaka, Senapati or Mahadandanayaka. The Cholas under Raja controlled the Coromandel and Malabar coast and the Bay of Bengal. सेना की बात करें तो सेना में हाथी, घुड़सवार सेना और पैदल सेना शामिल थी। छावनियों के प्रशिक्षण और अनुशासन पर ध्यान दिया गया। यह मुख्य रूप से कैकोला, मजबूत भुजाओं वाले पुरुष, या सेंगुंडर, भाला चलाने वाले से बना था। सेनापति नायक, सेनापति या महादंडनायक के पद पर आनंद लेते थे। राजा के अधीन चोलों ने कोरोमंडल, ई और मालाबार तट और बंगाल की खाड़ी को नियंत्रित किया। अब बात करेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स और प्रोविंसेस. These were usually governed by the princes of royal family. The provinces were further divided into Valandu or district and Nadu or groups of villages. The village was primarily unity of society and polity. They were also known as Kuram. The village assembly held the society together through its unique feature of autonomy, the self-sufficiency from Uttar Mayor
inscription were find reference of least 3 types of assemblies which played an important part in local administration, namely Ur Sabha or Mahasabha and Nagaram. The Ur was an assembly of common villages where the land was held by all classes of people who were therefore entitled to membership in the local assembly. The Sabha was an exclusive Brahmin assembly of the Brahmadeya villages where all the land belonged to the Brahmin. The Nagaram was an assembly of local merchants where traders and merchants were in dominant position. The Sabha, generally comprising the elite or learned in the community, commanded the respect of all other assembly in settling crucial matters of कॉमन कंसर्न। अब बात करेंगे चोला प्रशासन की। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था। ये आमतौर पर शाही परिवार के राजकुमारों द्वारा शासित होते थे। प्रांतों को आगे वलांडू या जिलों और नाडु या गांवों के समूहों में विभाजित किया गया। गांव समाज और राजनीति की प्राथमिक इकाई था। वे कुर्रम के नाम से जाने जाते थे। ग्राम सभाओं ने स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की अपनी अनूठी विशेषता के माध्यम से समाज को धारण किया। उत्तर मेरूर अभिलेखों से हम कम से कम 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात उर सभा या महासभा और नगरम। उर आम गांव जहां जमीन सभी वर्गों के लोगों के पास थी, इसलिए स्थानीय विधानसभा में सदस्यता के हकदार थे। सभा एक विशेष रूप से ब्राह्मण गांव की थी जहां सारी भूमि ब्राह्मणों की थी। नगरम स्थानीय व्यापारियों की एक सभा थी जहां व्यापारी और सभी ब्राह्मदेय व्यापारियों की सभा थी। अब बात करेंगे चोला टेम्पल्स की। Under the Chola temple became the center of the life. They were not only places of worship but also emerged as the hub of economic, political and cultural activities. The villages assembly invariably held in meetings in the temples, mandapa or hall. Temple also grew temple as a center of craft, especially the creation of the bronze images, which was most distinctive. Many cultural activities like music, dance also prospered in the temples. The Chola records frequently refers to the Deva Dana, literally given to gods, gifts of land. अब बात करेंगे चोल मंदिर की। चोल मंदिर चोल शासन काल में मंदिर जीवन का केंद्र बन गए। वे न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी उभरे। ग्राम सभा हमेशा मंदिर, मंडप या हाल में अपनी बैठकें आयोजित करती थी। मंदिर भी विशेष रूप से शिल्प के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। निर्माण कांस्य जो विशेष छवियों को दर्शाता है। अधिकांश गतिविधियां मंदिरों में संगीत और नृत्य भी फली फूली। चोल अक्सर देवदाना, शाब्दिक रूप से देवताओं को दिए गए सांस्कृतिक रिकॉर्ड का उल्लेख करते हैं। जैसे रिकॉर्ड चोल का ही एक नटराज मूर्तिकला था। अब बात करेंगे स्कल्पचर एंड पेंटिंग की। द मेटल एंड स्टोन इमेजेस कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड एट Exquisite. The masterpiece of the Chola sculptures is the famous Nataraja or the dancing Shiva image at the great temple of Chidambaram. This Nataraja has been described as the cultural epitome of the Chola period. The Cholas also patronized painting. The most important Chola painting are those in the Prada Kishinpat of Rajeshwara temple. अब बात करेंगे मूर्तियों और पेंटिंग की। इस अवधि के दौरान डाली गई धातु और पत्थर की छवियां उत्तम हैं। चोल मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति चिदम्बरम के महान मंदिर में प्रसिद्ध नटराज या नृत्य करते हुए शिव की छवि है। इस नटराज को चोल काल के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। चोलों ने चित्रकला को भी संरक्षण दिया। सबसे महत्वपूर्ण चोल चित्र राजराजेश्वर मंदिर के प्रदक्षिणा पथ में हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप एक्सरसाइज देख रहे हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगा। आप लोग बुक और कॉपी मेंटेन करेंगे और प्री मिड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। एसएसटी का आपका प्री मिड का सिलेबस हिस्ट्री का 2 चैप्टर
ज्योग्राफ़ी का 2 चैप्टर और सिविक्स का 2 चैप्टर है। आप लोग ये 6 चैप्टर्स SST के तैयार रखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।